Hi, welcome back to the YouTube channel of Civil's Notes. In this class, we will start with the new series of NCERT, that is class 7th Geography, chapter number 1. So the chapter number 1 is Environment. The chapter starts with the example of a school-going boy, Ravi. After the long vacation, when Ravi started going to school again, लंबी वेकेशन के बाद जब रवि स्कूल जाने लगता है तो ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." देखो हमारा environment कैसे change कर रहा है. In the class, Ravi asked his teacher कि environment क्या है. What is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. जो भी हम अपनी surroundings में देखते हैं उसे हम environment कहते हैं. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people. For example, roads, cars, clothes and books. So कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एट्सेट्रा, एंड कुछ जो है ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स एट्सेट्रा. So from the above conversation, we understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. जो environment है वो combination है natural and human made phenomena का. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. यहाँ पे उन्होंने biotic and abiotic का मतलब बताया है. Biotic is the world of living organisms. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ड को हम कहते हैं बायोटिक. एबायोटिक इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड. एंड एबायोटिक किसे कहते हैं? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. इन दिस डायग्राम दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. नेचुरल कंपोनेंट्स में हम लैंड को ले लेते हैं, लिविंग थिंग्स, एयर एंड वाटर को. ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मोन्यूमेंट्स एट्सेट्रा. एंड ह्यूमन में हम ले लेंगे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. Coming to the next topic of this chapter, that is natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. So land, water, air, plants and animals से मिल के बना है natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. So हमने previous class में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के मीनिंग डिस्कस किए थे. लेट्स कम टू द टेक्स्ट. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. सो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो बनी है रॉक्स एंड मिनरल से, and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. So lithosphere एक major domain है अर्थ का जो हमें provide करता है forest, गेजिंग के लिए ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चर के लिए लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. कमिंग टू द नेक्स्ट डोमेन, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर. सो डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. सो जो डोमेन वाटर को रेफर करता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करती है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर. द ग्रेविटेशनल फोर्स
of the earth hold the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists a number of gases. So हमने पिछली क्लास में भी ये सब के मीनिंग्स डिस्कस किए थे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. Coming to the word biosphere, plant and animal kingdom together make biosphere of the living world. So plant and animal together मिलके क्या बनाते हैं? Biosphere. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ये जो है अर्थ का नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करती हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. This is all about the major domains of the earth. Now coming to the word ecosystem. What is ecosystem? जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स पे. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. सो ये जो इंटरडिपेंडेंट का रिलेशन है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, ये फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, deserts, mountains, lakes, rivers, ocean and even a small ponds. So जो रेन फॉरेस्ट हैं, लार्ज रेन फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स एक्सेट्रा है, इनका भी एक इकोसिस्टम हो सकता है. ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन बींग्स जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड इसको मॉडिफाई करते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. पर टाइम के साथ साथ इंसान की नीड्स जो हैं वो बढ़ती गई एंड बिकेम मोर वेरिड. ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट. ह्यूमन्स ने न्यू वेज लर्न कर लिए एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए एंड यूज़ करने के लिए. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डिवेल्प. सो इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे टाइम आगे आगे गया, इंसान ने न्यू मीन्स यूज़ कर लिए एनवायरनमेंट को यूज़ करने के लिए. जैसे कि व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड प्रोड्यूस किया गया, बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड स्टार्ट किया गया एंड कॉमर्स जो है डेवलप हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन जो है फास्ट हो गया. जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड जो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन था उसने कम्युनिकेशन ईजी और स्पीडी कर दिया अक्रॉस द वर्ल्ड. अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे. सो एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो नेसेसरी है किसके बिटवीन? नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बिटवीन. सो इस पैरा में उन्होंने बताया है कि ह्यूमन्स को अपने एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे में यूज़ करना आना चाहिए. यहाँ पे बार्टर सिस्टम का मीनिंग दिया है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. सो बार्टर सिस्टम एक सिस्टम था, ट्रेड सिस्टम था जिसमें जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं मनी के यूज़ के बिना, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 1 of class 7th NCERT Environment. For more videos, like, share and subscribe to our YouTube channel Civils Notes. Thank you.